morning students. Students, we are back again with a new video. Now this video of mine can explains the first chapter, Going to School. Children, we have received a new PDF for this book of EVS of ours, Looking Around, and there's a slight change in this lesson content. So changes portion I would like to discuss with you and get your things clear there. Previously this chapter's name was Going to School, which is now Let's Go to School Every Day. Now few things which are there, children. In the previous video we saw areas surrounded by water like Kerala. Children used to use wooden boats named as Vallam. Now say in Gujarat, Bed Dwarka is a place where it's surrounded by water. These small children, they climb up the wooden boats and they try to reach the school. Second thing was ropeways. Only Ladakh was mentioned there. Now in Gujarat, we have places like Pavagad and Imbaji where we use this ropeways. Now ropeway is a trolley made up of a wooden plank tied to with a pulley. It works on a pulley with a strong rope. Now children, to come across, to walk around this place, these ropeways are used so that children can easily reach to their school. You have a thick jungle there. Even children cross thick jungles to come to school. The jungles are so dense, even you cannot see the sunlight there. You only hear the voice of animals and birds. And in Gujarat, Gir jungle, children cross that. Gir is famous for lions, as you all know. So it's so risky, with so many challenges. Children accept these challenges and try to reach to school. Now, Nidhi is a child who studies in 4th standard. Right from birth, her legs are not working. So it was difficult for her to come to school every day. The mother used to lift her and bring to school. But when she was provided by a wheelchair, now children, you know what a wheelchair? You must have seen in hospitals or when you come to stations where your grandmother, any aged person who cannot walk, they sit on that wheelchair and it is pulled by another person and it becomes easier for the child or an aged person to get through. So she walks on this wheelchair and she comes to school. All children are not same, right? There are challenges for each one of us. So Nidhi, she has a problem with legs and her challenges is coming to school through wheelchairs. See children, how it's difficult for children. There are so many challenges. Still children reach school because they know education is important. And to get a better life, they all try to reach school every day. Okay children, different means of transport through which children reach the schools. Let's look at a glance by using boat, as we have already learned and discussed in the previous videos. Key children in Bed Dwarka, they cross the river. The area is surrounded by water. They come through the wooden boat. Second is by crossing the cement bridge. As I told you, cement bridge is made up of cement, iron pillars. And where do you find that? We don't have it in Gandhidham. We don't cross that bridge and come to school. But as I told you, when you cross and you go towards Ahmedabad side, you have the Suraj Bari bridge. Right? You see waters down there, bridges up. We on our vehicles move on to that bridge and move on to the other place. In desert areas, camels are used because you know camel is the ship of the desert. Now you find sand everywhere. So it's a bit difficult for vehicles to move. So there children use camel carts to go to school. Tell me, where do you find these bullocks? Yes, in the village where there are plains lying down there. So children use these bullock carts and they cross the fields to reach the school. If it's too hot, they use an umbrella, and if it's raining, they wear their raincoats. Even some children use bicycles. Now where do you find bicycles they use? Even in our schools you must have seen, in Oslo building where children go, bigger children. It's not preferable for small children. Girls' education was not so important during previous years. पहले लड़कियों को इतना पढ़ने नहीं देते थे, तो क्या करते थे कि 7-8 groups of girls बनते थे ग्रुप में, and then they used to ride the bicycle और स्कूल जाते थे.
Now it's not so. Now education is right of every person. कुछ स्कूल की बसेस भी हैं हमारे सिटीज में। गांधीधाम, चलो बताओ कौन कौन से स्कूल में बस है? जेवियर्स में देखा है, यस। कैराली स्कूल का देखा है, यस। बीपीएस का देखा है, हाँ। हमारे स्कूल में बस नहीं है, राइट? तो हम ऑटो, पेरेंट्स और उन सब के साथ आते हैं। तो व्हाई देयर इज अ स्कूल बस? जो दूर दूर बच्चे रहते हैं, बस उनके स्टॉप्स पे जाती है। देयर इज अ कॉमन स्टॉप, इट इज नॉट अ पर्सनल स्टॉप। जहां पब्लिक व्हीकल्स है वहां पर्सन टू पर्सन डोर पे व्हीकल्स नहीं जाते। तो यू मस्ट बी नोइंग कि इस एरिया के लोग इधर मिलते हैं, तो दे क्लाइंब अप द बस एंड दे रीच स्कूल। ना चिल्ड्रन, इस स्कूल बस पे आपके टेक्स्ट बुक में एक ब्यूटीफुल सिंग पोएम है जिसे हम सिंग करेंगे। नाउ द वर्डिंग्स आर, जस्ट सी दैट, वी विल ट्राई टू सिंग, ओके? स्कूल बस drives around town, picking up and dropping off and bumping up and down. School bus, ठीक है? What it does, it drives around town. देखो वो अपना नगर में जाती है, वो इलाशा में जाती है, वो शक्ति नगर जाती है, तो वो पूरे सिटी में घूमती है। Picking up and dropping off क्या कहती है? मॉर्निंग में वो बच्चों को लेती है, that is picking up, और छुट्टी के टाइम पे जब स्कूल फिनिश हो जाता है, घर जाते हैं, तो it is dropping off. And bumping up and down. बम्पर्स होते हैं तो बस ऐसे कूदती है ना, तुम्हें मजा आता है ना? Yes. Turn to the left, turn to the right. This school bus is out of sight. कभी आप लेफ्ट देखोगे तो आपको बस दिखेगी, कभी आप राइट देखोगे तो दिखेगी, और कई बार वो गायब हो जाएगी, मतलब वो स्पीड में आगे निकल गई है। Big loud in yellow, my bus is really neat. Hop up and take the front seat. बिग बस बड़ी होती है, स्कूल बस इसलिए येलो कलर की होती है। मेरी बस नीट है, सबको अपनी चीजें अच्छी लगती है ना? वी शुड कीप आवर सराउंडिंग, बस, एवरीथिंग क्लीन। हॉप अप, कूदो, एंड टेक द फ्रंट सीट। हमें होता है ना जल्दी हम भागे। हम अपने स्कूल में बस में कब बैठते हैं पता है? जब हम पिकनिक में जाते हैं। तो तुम क्या करते हो? टीचर्स क्यू में लेकर आते हैं, पर फिर भी धक्का मुक्की, क्योंकि मुझे आगे जाके जल्दी से बैठ जाना है। समझ में आया सॉन्ग? हम एक बार फिर बोल देते हैं। स्कूल बस ड्राइव्स अराउंड टाउन, पिकिंग अप एंड ड्रॉपिंग ऑफ एंड bumping up and down. Turn to the left, turn to the right. This school bus is out of sight. Big, loud and yellow, my bus is really neat. Hop up and take the front seat. ये हुआ जो बच्चे स्कूल बस में स्कूल जाते हैं। अब कहीं पे जंगल्स भी है। देखो इंडिया जो है ना वो ज्योग्राफिकली डाइवर्स है। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, कहीं प्लेन टेरीन है। हम कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ये डेजर्ट कहलाता है, ओके? तो इसी तरह जो बच्चे जंगल क्रॉस करके जाते हैं, अब जंगल्स में क्या होता है? रोड्स तो ऐसे पक्के होते नहीं है, बड़े बड़े झाड़, डेंस झाड़, वहाँ बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। गुजरात में कौन सा बच्चे हमारे कौन से क्रॉस करते होंगे जंगल? गिर, यस, सासन गिर। और सासन गिर किसके लिए फेमस है? इट्स फेमस फॉर द लायंस। तो सोचो बच्चों को कितना डर लगता होगा, है ना? जंगल में से आते आते उनको बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, इतने डेंस फॉरेस्ट भी होते हैं कि आपको धूप भी नहीं आती, सनशाइन भी नहीं। नीचे पता है सूखे सूखे वो होते हैं पत्ते, हम उस पर चलते हैं तो आवाज होती है। फिर भी ये बच्चों को पता है कि पढ़ना जरूरी है। आप भी रोज आते हो ना? यू डोंट मिस द क्लास, यस। सो दे कम थ्रू क्रॉसिंग द जंगल। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ रॉकी पाथ हो। रॉकी पाथ क्या होता है पता है? उबड़ खाबड़, वो प्लेन नहीं होता है, अनइवन होता है, फिर भी बच्चे उस पर चलते हैं हाथ पकड़ पकड़ के और आते हैं। अब मुझे बताइए रोप पे में तुम कहीं ना कहीं तो बैठे हो, स्कूल के लिए नहीं बैठे हो, पर हम कहीं घूमने गए, तुम सब वैष्णो देवी गए होंगे, ठीक है? अच्छा, हमारे गुजरात में ही है पावागढ़, तो सब जाते हैं ना, बहुत लोग गए होंगे। तो पावागढ़ का मंदिर वो जो ऊपर माउंटेन पे है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अपने दादी माँ दादाजी वो नहीं चल सकते, तो क्या करते हैं? वो नीचे क्यू पे खड़े होते हैं काउंटर पे, फिर वो रोप पे में जाते हैं। रोप पे कैसा होता है पता है? एक ऐसा वुडन सा बॉक्स होता है और उसमें दो ऐसे सीट्स होती है, और वो चलता है स्ट्रॉन्ग रोप पे। उस पर एक पुली होती है। पुली मैंने समझाया था क्या होता है, राइट?
वो एक व्हील है, उस पे वो मूवमेंट करता है तो वो इजी हो जाता है। ओके, तो कुछ जगह जहां ऐसा होता है वहां बच्चे रोपवे भी यूज करते हैं। लास्ट में बच्चों, सारे बच्चे फिजिकली फिट नहीं होते हैं, देयर आर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ऑल्सो। हमें उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, राइट ना। कुछ बच्चों के बर्थ से आईज नहीं होती है, कुछ सुन नहीं सकते हैं, कुछ फिजिकली हैंडीकैप होते हैं जिनके पैर नहीं चलते। तो क्या होता है, मम्मी उनको गोदी में लेकर आती है क्योंकि पढ़ना तो है, राइट। तो मम्मी उनको गोदी में लेकर आती है, फिर उनको क्लास में छोड़ती है। तो बच्चे को भी रोज रोज अच्छा नहीं लगता होगा, वो सोचता होगा। पर अब क्या हुआ, हमारे पास व्हील चेयर आ गया है, तो बच्चे को व्हील चेयर पर बिठाते हैं, दूसरा उसकी मम्मी ऐसे उसको पुल करके ले जा सकती है, तो वो आराम से स्कूल जाते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में एक रैंप वाला बेबी होता है, तो इट इज इजी फॉर द मदर टू कैरी द चाइल्ड टू द पर्टिकुलर क्लास, राइट। नाउ सी, यू शुड सी द पॉजिटिविटी इन दैट बेबी। वो ऐसे कंपेयर नहीं करती अपनी मम्मी से कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, वो बहाने नहीं ढूंढ रही है। शी कम्स टू स्कूल थ्रू अ व्हील चेयर। तो आपने देखा कितने डिफरेंट मीन्स है, कितने डिफरेंट चैलेंजेस है। यू कंपेयर योरसेल्फ, यू आर सो लकी। ओके, सो डोंट गिव एन एक्सक्यूज एंड कम टू स्कूल डेली। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप टेक्स्ट बुक खोलोगे आपको पता चल जाएगा, मैं इस वीडियो में पीडीएफ भी भेज रही हूँ, न्यू वाला पीडीएफ, गो थ्रू दैट। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो चेंज है वो आपको कैम स्कैन के थ्रू मिल जाएगा, वो नोटबुक के कंटिन्यूएशन में आप लिख देना। ओके बच्चों, थैंक यू।